Assalamu alaikum everyone. Welcome to Database Systems Lab number 1. So, in this lab, we're going to start with the basic concepts of databases and SQL. Before moving towards the practical implementation, we will first understand that what is database and why we use database to store and manage data. We will also have a brief introduction to SQL, which stands for Structured Query Language. So, SQL is used to communicate with and manage relation databases. We will briefly discuss some basic SQL language components as well, which are over here. We are having 4 SQL components, which are DDL, DML, CDML, DDL, TCL, and DCL. DCL and TCL. Okay. So for the practical part of this lab, I have already created some tables with multiple records. As you can see, these are the tables with multiple records that we can work with actual data during our practice. I will also provide the complete SQL code for creating these tables and inserting the data so you can run the same code on your own system and practice along with the lab, all right? So after this basic introduction, our main focus of this lab will be select statement, which is over here. We are having multiple queries over here as well for select. This is a structure of select. Okay. So now let's discuss that what is basically select. Select statement is used to retrieve or fetch data from a database table. All right. We will learn how to select data from table, display specific columns, retrieve records, and gradually work with them with a different way of using the select statement. Okay. Select statement basically comes in DML, which is data manipulation language. Guys, now let's start. Let me tell you first this, that we are having 4 components. One by one, हम हर component को पढ़ेंगे. For each video, there will be a different component. There will be the advanced version of that as well. Okay. सबसे पहले हम आते हैं select component में, जो हमारे select पे, जो कि हमारे पास DML data manipulation language के अंदर आता है. Select का मतलब होता है कोई चीज select करके show करना. Okay. मगर अभी मेन पर आते हैं हम, जो हमारा डेटाबेस है. दैट व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस बेसिकली जैसे हमने एक बुक स्टोर खोला, हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स आ रहे हैं, मल्टीपल बुक्स हैं. अब हम एक उससे अगर एक्सेल शीट पे लिखें तो हमें बहुत ज्यादा देर भी लगेगी. हमें कुछ सर्च करना होगा, फैच करना होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, ऊपर नीचे रोल कर रहे होंगे हम. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग जस्ट कि हम एक क्यूरी लिखें और सर्च कर लें कि कौन सी चीज हम ढूंढ रहे हैं, कौन से पर्सन का रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं. अब डेटाबेस में ये बहुत आसान हो जाता है. जैसे कि हमें अगर किसी पर्सन का रिकॉर्ड ढूंढना है तो एक्सेल में हम लिटरली इडियट्स की तरह ऊपर नीचे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नेम सर्च एंड अल्फाबेट सर्च कर रहे हैं, नेम सर्च कर रहे हैं. एक ही नेम के मल्टीपल लोग हैं, वो सर्च कर रहे हैं. सही है. मगर अब हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हम जस्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे और हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा. It is as easy as this. So, okay, now let's start from the select statement 1. But let me tell you हम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं इसके लिए. बेसिकली अब सबके लिए आसान नहीं है ऑरेकल का एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल करना और यूज करना में भी विंडोज में प्रॉब्लम हो या कोई और सिस्टम हो तो इतना मसला हो उससे. So we can go with a website which is SQL Fiddle. मगर हम इसकी ऑनलाइन ऑरेकल कंपाइलर को खोलेंगे बिकॉज सबके अलग होते हैं. लाइक आई मीन टू से दैट सबके, वो नाम ही भूल गई मैं उसका गाइस. सबका स्ट्रक्चर अलग होता है. कोई किसी तरह से होता है, कोई किसी तरह से. अब इसे हम हटा देते हैं और हम अपने टेबल्स जो हमने बनाए हैं उनको यहाँ लगाते हैं. खैर, अभी आपको टेबल्स में पर्सनली सामने से दिखा देते कौन से टेबल्स हैं, फिर उसका कोड लगाते हैं. टेबल्स ऊपर आते हैं. ये हमारे पास 4 टेबल्स हैं. पहला एम्प्लॉय का, फिर डिपार्टमेंट का, फिर सेल ग्रेड का और फिर जॉब हिस्ट्री का. यही सारे हमारे पास यहाँ पर हैं, जो कि मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ
और यहाँ हम पेस्ट करते हैं ताकि हमारे टेबल्स आ जाए, ताकि जब हम क्यूरीज पे काम करें तो हमारे पास टेबल की वो क्यूरीज नजर आए। सही है। और हम अब एग्जीक्यूट प्रेस करते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं, तो हमारा टेबल सारे आ गए। ठीक है गाइस, सारे टेबल्स हमारे शो हो गए। अब आते हैं वन बाय वन हम सिलेक्ट क्यूरी पे। सिलेक्ट की क्यूरी, सबसे पहले क्यूरी पर आते हैं हम। सबसे आसान से लेके चलते हैं। ये रहे हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। इसका वो क्या होता है, प्रोसीजर किस प्रोसीजर से लिखते हैं? सिलेक्ट आएगा, स्टार आएगा, फ्रॉम आएगा, डिपार्टमेंट या कुछ भी। सही है। स्टार का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब है सब सारे कॉलम्स शो हो डिपार्टमेंट के। सही है। डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसके सारे कॉलम्स शो हों। मैं जस्ट ये कह रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट लिखकर। ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो सबसे एंड में हमारे पास डिपार्टमेंट शो हो रहा होगा, डिपार्टमेंट का टेबल। अभी ये वेट फॉर 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, देन एग्जीक्यूट। हमारे पास एंड में आ गया डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। यही सब हमारे पास यहाँ शो हो रहा था। अगर हम इसे देखें टेबल को तो ये रहा लोकेशन, ये हमें यहाँ पे शो हो गया। कैसे आया? जब मैंने बोला कि भाई मुझे सब देखना है, लाइक मुझे पूरा डिपार्टमेंट का टेबल देखना है, जस्ट जस्ट आई राइट दिस। ओके। अब हम आते हैं नीचे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिलेक्ट कुछ भी जो भी हमें देखना है वो फ्रॉम टेबल, और वेयर की कंडीशन का क्लॉज, वेयर का क्लॉज भी आता है। अब ये कब आता है ये बताती हूँ, जब कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हमने बिल्कुल सिंपल क्यूरी लिखी है जिससे हमने टेबल देख लिया। अब मुझे कोई और सा टेबल देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का टेबल भी है इसमें, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मुझे एम्प्लॉय का टेबल पूरा देखना है तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगी फिर से। फिर हमारे पास सबसे नीचे एम्प्लॉय का टेबल आ गया क्योंकि मैंने एम्प्लॉय का टेबल देखना था। ऐसे ही हम देख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी क्यूरी है सिलेक्ट डिस्टेंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, विच मीन्स to select names of all jobs in a department। अभी हम यही देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या है। select distant job from employee। अच्छा, पहले हमने स्टार करा था, स्टार का मतलब ऑल था। अब डिस्टेंट जॉब का मतलब क्या है? पहले जॉब देखते हैं। जॉब एम्प्लॉय का टेबल में जॉब है हमारे, एम्प्लॉय का टेबल सबसे पहले एम्प्लॉय का टेबल ही है हमारे पास। ये रही जॉब, हमारे पास एक कॉलम है जॉब का, इसका मतलब जॉब शो होगी। अब डिस्टेंट का मतलब क्या है? डुप्लीकेट्स हट जाएगी, सिर्फ यूनिक जॉब शो होगी। जैसे सेल्समैन मल्टीपल दफा आया हुआ है। सही है। एक दफा शो होगा ये, जैसे कि हम इसे एग्जीक्यूट करा इसे और सबसे लास्ट में गए डिस्टिंक्ट। इसमें एरर आया गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड। मैंने फ्रॉम की जगह फॉर्म लिख दिया। यस, नाउ लेट्स एक्जीक्यूट इट अगेन। और नीचे आते हैं जॉब प्रेसिडेंट, मैनेजर, सेल्समैन, क्लर्क, एनालिस्ट। ये तीन ही सिर्फ यूनिक है, बाकी कोई भी यूनिक नहीं है, तो ये हमें शो हो गया। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2200। अब ये वेयर का क्लॉज देखते हैं, वेयर क्लॉज कैसे आ रहा है। सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार ही लगती हूँ। सही है। और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 200, 2300, 2300। ओके। मैंने कहा इसमें क्या बोला, मैंने बोला सिलेक्ट करो सबको, सारे कॉलम्स आने चाहिए, मगर सिर्फ कौन से जिनकी सैलरी ज्यादा है 2300 से, सिर्फ वही कॉलम आने चाहिए। और मैंने एग्जीक्यूट कर दूं और सबसे लास्ट में जाऊं। आए तो सारे हैं, मगर अब इनकी सैलरी देखो, 2400 से ज्यादा है ना सबकी। ऐसे होता है काम, ऐसे चलता ही है। ऐसे ही हम फर्दर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हमने वेयर का क्लॉज लगा के भी देख लिया कि वेयर का क्लॉज कैसे है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये स्टेटमेंट टू सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन 2200, इसमें हमने क्या बोला, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2200। कोई भी कंडीशन आएगी वो वेयर के क्लॉज के बाद आएगी। जो कंडीशन भी हमने लिखनी है वो वेयर के क्लॉज के बाद आएगी। जो भी हमें कॉलम देखना होता है वो सिलेक्ट के बाद ऑल की जगह, इस स्टार की जगह उस कॉलम का नाम आ जाएगा जो भी हमें कॉलम देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कॉलम देखना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 2। सही है। मैंने बोला डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम जो है वो बोला मैंने, इसको बोला डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम। जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस। मैंने सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस। ऑलराइट, तो हम कहाँ थे, मैंने लिखा था यहाँ डिपार्टमेंट नंबर। इस मैंने स्टेटमेंट बेसिकली चेंज करी है बिकॉज अभी मैंने डिपार्टमेंट का टेबल देखा था, हमारे पास 10, 20, 30, 40 शो हो रहा था। सही है। तो मैंने वो लिखा है जो एग्जिस्ट करता है 20। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास डी नेम रिसर्च आ गया है। 20 पे हमारे पास रिसर्च है, लेट्स रीचेक। 20 पे रिसर्च है क्योंकि हमने डी नेम देखना था, डिपार्टमेंट का नंबर देखना, सॉरी डिपार्टमेंट का नेम देखना था। हमने कॉलम नंबर डी नेम देखना था डिपार्टमेंट के टेबल से जिधर डिपार्टमेंट नंबर 20 है। ऐसे हम बेसिकली लिखते हैं स्टेटमेंट्स है। फिर हम अब चौथे वाले पर आते हैं। तो डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सही है। इस पे और देखते हैं, हु वर हायर्ड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो साइड बाय साइड कर देते हैं। ओके, हु वर हायर्ड बिफोर 12 मई 1981। अब इसको मैं बताती हूँ ये कैसे लिखेंगे। अब पहले हम जस्ट इसकी स्टेटमेंट से लिखते हैं, इसको नीचे नहीं देखते, ठीक है। डिस्प्ले करना है क्या, नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो हमें डिस्प्ले जो करना है कॉलम का नाम लिख देंगे, सिलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नंबर। सही है। ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय के टेबल से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल का नाम आ गया। सही है। हु वर हायर्ड बिफोर 12 मई 1981। अच्छा, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब क्या बोला है, कंडीशन आ गई। कंडीशन के लिए हमारे पास कौन सा क्लॉज यूज होता है, ये कंडीशन आ गई। इसके लिए हमारे पास क्लॉज यूज होता है वेयर। सही है। इसका मतलब क्या चल रहा है, सिलेक्ट कर रहा है मगर हमें मतलब हमें देखना है ई नेम एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय की टेबल से जहां पर अवेयर, यहाँ पर क्या है, हु वर हायर्ड बिफोर 12 मई 1981। सही है। अब हम क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे, हायर डेट। हायर डेट हमने रैंडमली ऐसे नहीं लिखी है, हमें पता है हायर डेट यहाँ पर गिवन है। सही है। तो इसको देखते हुए लिखा है। हमने हमेशा ध्यान देना है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ जो कॉलम गेम्स नेम्स रिटन है वही हम लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ से भी, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये एक्सेप्ट नहीं करती है एरर्स। ओके, बहुत ध्यान देना है स्पेलिंग्स वगैरह का। तो हायर डेट क्या है, हायर डेट बिफोर आए मतलब हु वर हायर्ड बिफोर 12 में, मतलब अब 12 मई से पहले हायर जो है तो हमारे पास ये वाली साइन आ जाएगी। और फिर हम लिख देंगे 12 मई 1981। ऑलराइट, और फिर हम ये साइन लगा दें। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। तो थोड़ा बड़ा ऐसे करके, वेट, ये रहा क्वेश्चन। हमने करा, सही है। और इसको मिड में लिया।
हमने क्या करना था, डिस्प्ले करना है नेम, डिपार्टमेंट नंबर, नेम क्या था, ई नेम, तो ई नेम लिख दिया हमने। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, कैसे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय के टेबल से, तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय के टेबल से। फिर क्या है, ऑफ एम्प्लॉयज हु वर हायर्ड बिफोर 12 मई 1981, मतलब उन एम्प्लॉयज का जो कि 12 मई 1981 से पहले हायर हुए हैं। तो हमने बोल दिया वेयर हायर डेट इस पहले मतलब इस बिफोर 12 मई 1981। सही है। जैसे हमने ये करा एंड देन हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास कुछ ई नेम और कुछ डिपार्टमेंट नंबर होंगे। सही है। जैसे कि 12 मई 1981 से पहले अब देखते हैं कौन से हैं। मई, अप्रैल में, अप्रैल ये तो लाजमी शो होगा जॉनस, बाकी अब देखते हैं और कौन कौन से शो होंगे। हमारे पास है ब्लेक है, जॉनस है, एलियन है, स्मिथ है और वार्ड है। ये सब शो हो रहे हैं हमें क्योंकि ये सब उससे पहले हायर हुए हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमें बोला टू डिस्प्ले नेम एंड जॉब ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन कॉन्केटिनेशंस ऑपरेटर। हमें ना पहले देखते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है कि क्या सोल्यूशन है। हम जस्ट नॉर्मल देखते हैं, डिस्प्ले करना है नेम और जॉब, तो क्या मतलब हुआ, सिलेक्ट कर दो ई नेम, नेम चाहिए, जॉब चाहिए और जॉब देख लो। सही है। और कौन से टेबल से करना है, एम्प्लॉय के टेबल से करना है। सही है गाइस। अच्छा, हमने एम्प्लॉय के टेबल से करना है। ऑलराइट, सो हम कहाँ थे, ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय से, ये हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हमें बोला है एम्प्लॉय यूजिंग लिटरल कैरेक्टर्स इन कॉन्केटिनेट ऑपरेटर्स, मतलब अब हमें एज अ सेंटेंस बनाना है इसे। ठीक है, एज अ सेंटेंस। अब कैसे बनाते हैं हम, सिलेक्ट ई नेम करा हमने, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं डबल ऐसे करके, उसके बाद मैं बोल दूं इस आ, फिर दोबारा डबल कर देती हूँ, मतलब ई नेम का नाम आ गया। एक मिनट, यहाँ मैंने एक डिफरेंट दे दिया। ओके, ई नेम आ गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल जॉनस इज अ सेल्स मैनेजर, ऐसे आ जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से। सही है। अच्छा, अब मैं इसको एक और चीज करती हूँ, एस, एस के बाद मैं लिखती हूँ इन्फो। अब इससे क्या होगा, ये मैंने बेसिकली कॉलम का नाम चेंज करना है, करा है। एक मिनट, ये यहाँ नहीं आएगा, ये जॉब के बाद आएगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। एज इन्फो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से। तो अब इसका मतलब क्या है कि जॉन, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, जॉन इज अ मैनेजर, और कॉलम जिसके अंदर ये सेंटेंस आएगा उसके कॉलम का नाम है इन्फो। सही है। और ये किस टेबल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय के टेबल से। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सही है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई गेस कुछ प्रॉब्लम आया है। फ्रॉम कीबोर्ड इज नॉट फाउंड एक्सपेक्टेड। ओके, सिलेक्ट ई नेम, ई नेम के बाद हमारे पास आए ये दोनों चीजें कॉन्केटिनेशन के लिए। फिर ये हो गया, इससे गैप इतना ज्यादा आ गया इसमें। फिर यहाँ जॉब आ गया, एज इन्फो फ्रॉम एम्प्लॉय। सही लिखा हुआ ये। फ्रॉम कीवर्ड कैसे नहीं है, लिखा हुआ तो है यहाँ पे। आई डोंट गेट दैट। ओके, डायरेक्ट ये करके देखते हैं और इसको एडिट करके देखते हैं। इधर भी ये एरर आ रहा है, एज इन्फो, नहीं ये इन्फो वाला आ रहा है, सॉरी। इन्फो तो मैंने हटा दिया, लेट मी रिफ्रेश इट एंड एग्जीक्यूट इट अगेन, वेट। आ गया। नहीं ये नहीं आया, ये मिसिंग डबल कोटेशन आइडेंटिफायर।
डबल कोटेशन करके देखते हैं, चलो। ओ यार, इसको भी तो देखना था, इसको तो करा ही नहीं डबल कोटेशन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड गाइस। देयर इज अ प्रॉब्लम। सिलेक्ट। ओ यार, select e-name as a job as employee details from employee का टेबल। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, सही है। अभी नीचे चलते हैं। अच्छा, ये रिट्राइवल है। ये बेसिकली ज्वाइंस होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी प्रोबेबली। लैब नंबर 2 या 3 प्योरली ज्वाइंस के ऊपर है। ओके। तो उसमें मैं बताऊंगी क्लियरली। अभी हमने मेन चीजें क्या क्या सीखी हैं मैं बताती हूँ। हमने सीखा है सिलेक्ट करना। हम पूरे टेबल को कैसे देख सकते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सही है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, हम किसी कॉलम को कैसे देख सकते हैं? जैसे हमने बोला सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब ये सिर्फ एक कॉलम शो होगा। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इन सब के एंड में लाजमी ये वाली साइन आती है, ऑलराइट गाइस। सेमी कॉलन जो है लाजमी आता है। इसके अलावा हमने और क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई हमने पूरा टेबल भी देखना सीख लिया, एक कॉलम भी देखना सीख लिया, फिर हमने कंडीशन सीखी। कंडीशन मतलब फॉर एग्जांपल ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्लॉज। वेयर का क्लॉज मतलब जहां वेयर का क्लॉज है, इट मीन्स ये कंडीशन है, सही है। वेयर फॉर एग्जांपल मैं ये एक देती हूँ, वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ, सही है। जहां नेम स्मिथ है, हम इसे हटाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सही है। ये हमारे पास है ई नेम ब्रेक वगैरह ये सब चीजें। ये हमने जो करा, पहले हमने पूरा टेबल देखा, फिर हमने ई नेम सिर्फ देखे हैं। दूसरी वाली में प्रोबेबली, कौन सी वाली में लिखा है? ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ ई नेम शो हो रहे हैं। फिर ई नेम करना है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ। ई नेम जहाँ सिर्फ ई नेम स्मिथ है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? एरर एट लाइन 2। इसमें कहीं एरर है, अब लेट्स सी हम एरर कैसे आया है, तो ठीक करते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करना है ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ। जहाँ ई नेम स्मिथ है वही सिर्फ सिलेक्ट हो। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल ई नेम देखते हैं, स्मिथ है हमारे पास वैसे, इसमें हमने ये नहीं लगाया। अब लेट गो विद दिस, लेट्स गो गाइस। ओके, नाउ आ गया होगा। यस, स्मिथ आ गया। इसमें तूने अपना ही ई नेम देखा। अब इसको बोला एक नहीं दो कॉलम्स देखते हैं मुझे अपने। जैसे एम जी आर भी आ गया और ई नेम भी आ गया, वैसे फिर एग्जीक्यूट करेंगे हम और फिर सबसे नीचे जाएंगे। ये एग्जीक्यूट होगा, हो गया। ई नेम भी आ गया, इसका एम जी आर नंबर भी आ गया। दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। बहुत ईजी है। हमने सबसे पहले टेबल पूरा देखा, फिर हमने एक कॉलम देखा, फिर हमने दो कॉलम देखे, हमें 3 कॉलम देखे तो हम 3 कॉलम देखेंगे। देखें कितना आसान है रिट्राइव करना। अब एक्सेल में हम लिटरली इडियट्स की तरह ऊपर नीचे ऐसे राउंड एंड राउंड खेलते रहे, अल्फाबेट सर्च करें। हम ये डायरेक्ट नाम सर्च कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हमें नाम के अलावा और भी कुछ चाहिए, जैसे हम वहां भी एक्सेल में भी सिर्फ नाम सर्च कर सकते हैं, मगर इतने सारे नाम होते हैं, तो हम ये एंड और के ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो और बहुत अच्छे से समझ आ गए हो, सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हो। और आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।